ایک اخبار میں ایک خبر تھی کہ کتا گم ہو گیا ہے، اگر کسی کو ملا تو اتنا اتنا انعام ملے گا. 5000 لوگ لاپتہ ہے، اس کا کوئی خبر اس اخبار میں نہیں آئے گا، مگر اس کتے کی خبر آئی تھی. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کرنٹ لگنے سے گدھا ہلاک ہو گیا، مگر وہاں پر ہمارے انتہائی انٹلیکچوئل طبقہ وہ روزانہ کے بنیاد پر ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہو رہا ہے، کوئی خبر نہیں آئے گی. ایک دن تو یہ خبر بھی سارے چینلز پر چل رہا تھا کہ عارف علوی نے ٹک ٹاک جوائن کیا. وہاں انسانوں کا خون بہ رہا ہے، وہاں پر مائیں پورا دن رو کر اپنی ہی چادر سے اپنا سر درد کی وجہ سے باندھ لیتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جنرل کیانی نے آسٹریلیا میں جزیرے لیے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ پشتونوں کا ایک علاقہ ہے جس کی مکمل زندگی ہم نے تباہ و برباد کر دی ہے. اور رویہ کیا ہے؟ رویہ یہ ہے کہ کلبھوشن یادو کے لیے اسپیشل بیل بنائیں گے ان کے حقوق دینے کے لیے، ان کے ساتھ کال بھی الاؤڈ ہے، پر بلوچ اور پشتون جو مسنگ ہے اس کو کچھ الاؤڈ نہیں ہے، اس کو کوئی اس طرح کی فیسلٹی نہیں ہے. علی وزیر کا قانونی حق پروڈکشن آرڈر کے لیے وہی اسمبلی کام نہیں کر رہے، اسی اسمبلی کا وہ ممبر ہے. اور انصاف دور کی بات ہے، انصاف دور کی بات ہے، انصاف مانگنے کے لیے بھی وہ ہمیں نہیں چھوڑتے ہیں. انصاف مانگنے کی جرم میں بھی ہم پر کون سے دفعات لاگو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ 123 124 اے بی. 1860 میں انگریزوں نے اس علاقے کو غلام بنانے کے لیے جو دفعات انٹروڈیوس کیے تھے، لوگوں پر لگائے تھے، آج پاکستانی ریاست وہاں پر پشتون رہنماؤں پر آج بھی وہی لگاتے ہیں. کوئی ڈی کالونائزیشن ہمارے لیے نہیں ہوئی ہے، ہم اسی کالونیل دور میں رہ رہے ہیں. 3 MPO آج بھی وہاں پر کمن ہے، 5 MPO 3 MPO وہی انگریز. ایسا لگ رہا ہے کہ جو علاقے انگریزوں کے ساتھ تھوڑے کوآپریٹو تھے ان کے ساتھ آج کا بھی فوج کوآپریٹو ہے، جو نہیں کوآپریٹو تھے اس کے ساتھ آج بھی وہی رویہ ہے. پاکستان جب بنا تو یہاں پر فوج تو نہیں بنی، وہی فرنگی فوج میں بھرتی لوگوں کو اکٹھا کر کے نام بنا دیا گیا کہ پاکستان آرمی. تو قالو یہاں پر وہی رویہ جاری رہا، ہمارے ساتھ وہی رویہ آج کل جاری ہے. ایکشن ان ایڈ آف سول پاور یہاں ذکر کیا گیا، کسی نے پڑھا ہے؟ اس میں ایک سیکیورٹی اہلکار کو مکمل اجازت ہے کہ کسی کو پکڑو، اریسٹ کرو، قتل کرو، گھر میں اسمار کرو، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا. یہی علاج ہے ہمارے لیے 3 MPO ہے. ہم آج پوچھنا چاہتے ہیں کہ ریاست کے پاس ہمیں دینے کے لیے اس 21ویں صدی میں جہاں ریاستیں فلاحی ریاستیں ہیں، کیا ہے؟ ٹارگٹ کلنگ، مسنگ پرسنز، پراکسی وار، گڈ طالبان، بیڈ طالبان، وہ طالبان، یہ طالبان، داعش، نام تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی کہ TTP کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے. ایگریمنٹ میں 1 مہینے کی سیز فائر کا اعلان پورا نہیں کیا گیا تھا کہ باجوڑ میں واقعہ ہوا بات آئی کہ داعش نے قبول کی. ہم جانتے ہیں کہ یہ جو نام ہے یہ موس یعنی کپڑے ہے، جو پیچھے بندہ ہے ہم اس کو جانتے ہیں. اور اس خطے میں پروفائلنگ کی گئی، پروفائلنگ کے گویا دہشت گرد ہے، جب اس سے بات نہیں بنی تو غدار ہے. لوگوں کو اتنا وہ کیا گیا. ابھی ایک نوجوان آیا کہ میں لاہور سے ہو، کیا آپ واقعی غدار ہے؟ سوال پوچھ رہے تھے، مجھے خوشی ہوئی اور میں نے کہا ہاں میں واقعی غدار ہوں. تو وہ تھوڑا مجھے دیکھنے لگا کہ کیسے؟ میں نے کہا وہ ظالم لوگ، وہ ظالم جرنیل جو یہاں ظلم کرتے ہیں اس کا میں کبھی وفادار نہیں رہوں گا. سارا مسنگ پرسن یا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، بلوچ مسنگ پرسنز یا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، یا اس طرح سندھ میں اور دیگر علاقوں میں، یہ میں نے جو خاکہ پیش کیا وہ صرف بتانے کے لیے کہ جو ہزاروں لوگ شہید اور مسنگ پرسنز ہو رہے ہیں ان کے گھروں کا، ان کے فیملیز کا کیا حال ہوتا ہے اور یہ سین کیا ہے. یہ سب کی ریپریزنٹیشن ہے، یہ یہاں پر صرف ایک علاقے کی نہیں، اس خطے میں مظلوم اقوام کی ریپریزنٹیشن ہے. اور جب بھی ضرورت پڑی ہم سارے مظلوموں کے ساتھ ہوں گے. تو ہم کہہ رہے ہیں 70,000 لوگ شہید ہو گئے ہیں. تھوڑا ان کی بات کرتے ہیں کہ طریقہ واردات کیا تھا. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی بات ہم سنتے ہیں. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کن کن طریقوں سے ہوا؟
फेक इनकाउंटर्स के जरिए 2018 में फरवरी में नकीब उल्लाह महसूद नामी एक नौजवान के बारे में सुना होगा कि रावनवर ने उसको किस तरह बेदर्दी से शहीद कर दिया। एक एहतजाजी तहरीक उठी, मगर हमारी किस्मत में एहतजाजी तहरीक चलाने के बाद भी इंसाफ नहीं हुआ। रावनवर के मुतालिक लिखा गया कि 444 और भी इनने लोग कत्ल कर दिए। रावनवर आज़ाद है, मगर उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले अली वजीर जेल में है। जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले अली वजीर जेल में है। अली वजीर को जेल में रखने के लिए और गिरफ्तार करने के लिए इस मुल्क में इदारे और अदालत मौजूद है, मगर अली वजीर के खानदान के 17 शहीदों को इंसाफ देने के लिए कोई अदालत और कोई इदारा मौजूद नहीं है। फेक इनकाउंटर्स का सिलसिला रुका नहीं है। अभी 29 अक्टूबर को जार कयूम और लाल मरजान नॉर्थ वजीरिस्तान के 2 शहरी थे, बन्नू से 8 महीने पहले गिरफ्तार किए थे मजदूर थे। 29 अक्टूबर 2021 को मेरली में उनकी लाशें कहीं डाल दिए, फेंक दिए और कहा कि इनकाउंटर में मार दिए गए। फेक इनकाउंटर के नाम पर अगर मैं यहाँ बात शुरू कर दूं तो हजारों वाकयात हैं। यहाँ पर जितने भी हम कहते हैं कि कत्ल कर दिया गया, वो सिर्फ एक इंसान का कत्ल नहीं होता है, वो उन माओं की उम्मीदों का भी कत्ल होता है, उन बच्चों के उम्मीदों का भी कत्ल होता है जो उनके सहारे जीते हैं, वो उस घर के माइशत का भी कत्ल होता है। इसका एक और शक्ल है डायरेक्ट किलिंग्स, डायरेक्टली मारते हैं। जिस तरह के खड़ कमर शुहदा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। 26 मई 2019 को स्ट्रेट फॉरवर्ड एक रैली पर फायरिंग कर दी गई, जिसमें 16 शहीद हो गए और 45 जख्मी हो गए। और ये डायरेक्ट फायरिंग पश्तूनों के गैदरिंग्स पर करने के रवायात पाकिस्तान बनने के एक ही साल में शुरू हो गए थे। बाबड़ा से लेकर आज तक वही डायरेक्ट किलिंग्स के वाकयात हो रहे हैं और प्रोफेसर अरमान लोनी को भी डायरेक्ट शहीद कर दिया गया। और इस तरह आप लोगों ने सुना नहीं होगा, क्योंकि मीडिया वालों को जर्नल की तरफ से इजाजत नहीं है, कर्नल की तरफ से, कि आप लोगों को वो हालात बता दें। वरना पिछले साल चमन में आम आवाम पर जब फायरिंग किया गया, उसमें जो 2 नौजवान अब्दुल रज़ाक और मतीउल्लाह शहीद हो गए, उसके उम्र 12 साल और 14 साल थे। छोटे छोटे बच्चों को भी ये लोग माफ नहीं करते हैं। इसका एक और शक्ल भी है इन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का, रिएक्शनरी किलिंग। यानी कहीं फौज पर फायरिंग हुआ तो वो आम आवाम के इलाकों में घुसकर वहां पर लोगों को टारगेट करते हैं। एक वाकया सिर्फ यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए बयान करता हूँ। ये 9 मई 2009 का दिन है। स्पिन वाना के करीब एक इलाका है, वहां पर फौज पर एक फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद वो गांव में दाखिल हुए। उस वक्त गांव के स्कूल में असातिज़ा की मीटिंग चल रही थी। 17 असातिज़ा को डायरेक्टली शहीद कर दिया गया वहां ही मौके पर। ये 21 अगस्त 2017 की बात है कि शाम का हमारे गांव के करीब एक गांव है, उसमें नाखुशगवार वाक़ये के बाद 3-4 दिन से लोगों को घरों से निकालकर उस पर तशद्दुद किया जा रहा था। जार खान एक नौजवान थे जो मिर्गी के मरीज थे। उनके सारे डॉक्टर के कागजात फौज को दिखा दिए कि ये मरीज है, मगर फिर भी उन्होंने कहा हमने इसका इलाज करना है। उनके माँ और बाप के सामने, उसका बाप अब्दुल गफूर जो एक रिटायर्ड हवलदार थे, उसके सामने जार खान को शहीद कर दिया गया। और उसके बाद उसकी माँ वो मेंटली खराब हो गई और 1 साल बाद उसका डेथ हुआ, वो भी जंजीरों में बांधी हुई थी। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की एक और शक्ल है जो हमारे लोग भुगत रहे हैं, टॉर्चर सेल में किलिंग्स। यहाँ मेरे दोस्त बेटे हैं, उनके कजन थे मोहम्मद यूनुस, 2009 में लापता हो गए। 2018 में उसकी लाश मिल गई। उसका एक बच्चा था जो उसके लापता होने के 2
महीने बाद पैदा हुआ था, उन्होंने यानी उसका अरमान था अपने वालिद को देखने का, मगर उसको लाश ही मिली। ये टार्चर सेलों में जो लोगों को मारते हैं। जनवरी 2018 में स्पिनकई बहरवंद इलाके में नाखुशगवार वाक़े के बाद जब लोगों को अरेस्ट किया तो एक दिन गांव में ऐलान हुआ कि एक लाश पड़ी है कब्रिस्तान में, आप लोग उठा दें, इस गांव का है। उन्होंने वहां पर टार्चर सेल में खुदकुशी की। खुदकुशी कोई नहीं कर सकते, सारे लोग भाग रहे थे, यानी बच्चे औरतें, कि अब किस घर का है वो। उसका नाम नुराइन था। दूसरे दिन एक और लाश वहां पे आया और आपको वहां कहते कि डायरेक्ट दफन करना है। एक बार तो तालिबान कह रहे थे कि 10 बजे तक दफन नहीं करना है, कभी कहते हैं वहां पर ये जो मिलिट्री और तालिबानों का सिस्टम है कि डायरेक्ट दफन करना है। दूसरे दिन फिर एक लाश आया कि दीवार से छलांग लगाई है, ये मारा गया। सारे टार्चर थे। उसका नाम अमीरुल्लाह था और तीसरे दिन कयूम की थी खुदकुशी, लेकिन हर बार नाम नहीं बताते थे, बस लोग आ जाते थे गांव के, वहां पर पाया जाता कि किसका है, किसका अपना है। सितंबर 2015 में ज़ियारत से तहसील सरवकई का एक इलाका है, वहां पर बमबारी हुई। मैंने खुद वो हालात अपने आंखों से देखे। ये जितना भी बयान कर रहा हूं इनके बारे में चैलेंज देता हूं, अभी स्टाम्प पेपर लिखूंगा कि दुनिया के किसी भी रिसर्च वालों ने इसको गलत साबित कर दिया तो मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। सितंबर 2015 में ज़ियारत में बमबारी हुई। हम स्टूडेंट थे, वहां पर पहुंचे तो 4 खवातीन और 5 बच्चे मुकम्मल टुकड़े हुए थे। टुकड़े को इकट्ठा करके बोरियों में जनाजे पढ़ाए गए। उसकी सिर्फ एक ही बच्ची रह गई थी जो होश में आने के बाद बार बार अपने माँ का पूछ रही थी, मगर वहां कोई माँ नहीं थी। तो ये वो जबर है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जबर ये नहीं था, इससे भी ज्यादा हुआ। पाकिस्तानी मीडिया पर वहां पर पटी चल रही थी कि पाक फिजाया की कामयाबियां जारी, ज़ियारत में 13 दहशतगर्द हलाक। इसका एक और शक्ल है जिसको हम टारगेट किलिंग कहते हैं। सरदार आरिफ वजीर इसी टारगेट किलिंग के शिकार हो गए। मलक रईस, बल्कि एक तो सिटिंग एमएनए थे मेराजुद्दीन, उसका भी आज तक कोई पता नहीं है। नूर इस्लाम दौड़ अभी पिछले 2 महीनों में वो भी टारगेट किलिंग में शहीद हो गए। फिरोज शाह स्वात में, शाह फैसल दिर में, मतलब सिर्फ नॉर्थ वजीरिस्तान में 2 सालों में 418 घर टारगेट किलिंग में गुजर गए हैं। पूरे मिलिटराइज्ड एरिया है, वहां पर जितनी पहाड़े हैं उन सब के ऊपर किले होते हैं, रास्ते में चेक पोस्ट होते हैं। स्पाटा का 1 इंच जमीन ऐसी नहीं है जो उनको दिखाई नहीं देते हैं। हमारे घर के सहन उनको दिखाई देते हैं, रात वाले दूरबीन भी होते हैं। फिर कौन आता है इस बीच में? मेरे लिए में अभी फरवरी में 4 खवातीन को जो 16,000 रुपए की तनख्वाह पर एनजीओ के साथ काम करके अपने बच्चों को परवरिश करती थी, उन चारों को शहीद कर दिया गया, मगर आज तक इनका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ये टारगेट किलिंग उन इलाकों में ज्यादा होती है जहां मदनियात ज्यादा होते हैं। नॉर्थ वजीरिस्तान, बोया, मोहम्मद खैल जो कापर और गोल्ड से बरी पड़ी है, वहां के लोकल लोगों को ट्रक की ड्राइवरी भी नहीं मिलती है। चाइना के साथ एग्रीमेंट करके सिर्फ वहां पर लोगों को टारगेट किलिंग मिलती है और कुछ नहीं। इस तरह अगर बम धमाकों और शक्लों की बात करें, एपीएस की शुहादा से लेकर क्वेटा के वकला तक और फिर ताहिर दौड़ की सवालिया लाश, इन सब के लिए जब हमने मुतालबा किया कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाए तो कहा गया कि तुम लोग गद्दार हो। अपने मजलूम और महकूम लोगों की, आवाम की तर्जुमानी अगर गद्दारी है, बहुत ज्यादा फख्र है हमें इस पर। प्राउडली हम गद्दार है, हम इन जालिम जर्नलों के वफादार नहीं बनेंगे। अब एक और शक्ल है मिसिंग पर्सन्स की। मुतालबा यही है कि मिसिंग पर्सन्स को अदालत में पेश करे। अगर इसमें कोई मुजरिम है, आइन के मुताबिक सजा दो। अगर कोई इनोसेंट है तो उसको रिहा कर दो। मैं सिर्फ 1-2 इनके केसेस आप लोगों को सुनाता हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए। कमालुद्दीन हमारे इलाके के नौजवान थे, वालिद का नाम शेरीन खान है। 17 साल की उम्र में वो कैंटीन में काम कर रहे थे, वहां से उठाए गए। वो अपने वालिदैन के अकलौते बेटे थे। उसके वालिद दुबई में मजदूरी करते थे। हमारे पश्तूनख्वा में मदनियात की, खुश्क मवाजात की कमी नहीं है, जन्नत जैसा वतन है, मगर
हमारी रोजी लाहौर, कराची और दुबई के गलियों में लिखा गया है इन ही स्टेट पॉलिसीज की वजह से। तो वो दुबई की मजदूरी छोड़कर यहाँ आया, अपनी सारी जायदाद फरोख्त की उसका खोज लगाने के लिए कि पता चले कि कहाँ है कमालुद्दीन। जब 2016-17 में आईडीपीज वापस अपने इलाके जा रहे थे, शरीन खान नहीं गए अपने इलाके। उसने कहा हमारे इलाके में नेटवर्क नहीं है, 21वीं सदी है, आज भी मैं 2-3 महीने जब एक्टिविज्म में बिजी होता हूँ, अपने घर के साथ राब्ता करने के लिए लैंडलाइन की सिस्टम तक नहीं है। तो उन्होंने कहा शरीन खान ने कि अगर मैं वहां चला जाऊं तो ऐसा ना हो कमालुद्दीन रिहा हो जाए और मुझे ख्याल आ जाए और मैं ये मिस कर दूं। तो उस वजह से वो अपने गांव नहीं जा रहे थे। मगर 2020 में अभी पिछले साल इसी अरमान में उस वालिद का डेथ हुआ है, उसकी वालदा रह गई है जो इंतजार कर रही है। ये मिसिंग पर्संस की थोड़ा इंट्रोडक्शन था कि किस तरह एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग और मिसिंग पर्संस 5000 लोगों के हमारे पास डेटा है, वो कोर्ट में पेश करे।